Hello and welcome to the online English classes for grade 12. Children, last video we discussed the summary, we discussed the outline theory of the chapter, that is landscape of the soul, where we discussed three kinds of stories about two Chinese stories about art and the techniques they employed while creating paintings, and second one was the European technique. So, by the medium of this, the author, that is Nathalie Troberoy, she wanted to discover the techniques, the basic feelings and basic abstract feelings that were involved while drawing that art. So, let's continue with the theory that basically the Chinese employed while drawing the art. So, children, now what was the basis of those Chinese painting drawn by Wu Daozi? That was a great painter in the 18th century, the most recognized one. And what was the basic theory that he involved while painting, and that became a culture afterwards. All the painters, they use the same technique. So children, Chinese paintings are based on philosophy of Taoism. Taoism, the word has been derived from Wu Daozi, the famous painter. Dao means path or way, the way into the mystery of the universe. Means it was a way जिसके through they used to they could through their drawing they could see the inner mysteries or inner things that were involved in the universe. The emperor may rule over the territories, but the artist alone knows the way within. Okay. ऊपर से तो राजा महाराजा, दे आर ऑल रूलिंग योर यूनिवर्स, दे आर द वंस हु आर द हेड्स ऑफ द यूनिवर्स, बट जो आर्टिस्ट है ही ओनली नोज व्हाट इज द इनर फीलिंग्स, व्हाट आर द इनर स्पिरिट्स ऑफ द बेसिक यूनिवर्स. लाइफ हैज़ नो मीनिंग अनलेस वी अंडरटेक द इनर स्पिरिचुअल जर्नी. ठीक है, तो दिस इज व्हेन एन एक्चुअल अ रियल पर्सन, ही नोज द इनर फीलिंग्स, he knows about the spirituality involved in everything. They do not reproduce an actual view but use a real landscape to say something more. A Chinese painter therefore wants the viewer to take plural viewpoints to enter into his paintings and travel in it. अब चाइनीज़ जो हैं, चाइनीज़ जो ये आपके पेंटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी जो थ्योरी होती है कि यू हैव टू फॉलो, आपको उस चीज़ को अच्छे से देखना है, उस थ्योरी को अच्छे से समझना है, उस पेंटिंग को अच्छे से समझना है, और उसकी जो इनर स्पिरिट्स हैं, जो इनर फीलिंग्स जो इन्वॉल्व हैं, जो ड्रॉ करने के टाइम, जो बनाने की पेंटिंग बनाने के टाइम वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको समझना है आपको. उनकी इनर फीलिंग्स, जो उन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, उसको समझना है. सो ही वॉन्ट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेशन, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल. His landscape is not a copy of a real landscape. It is a representation of an inner reality or spiritual and conceptual space. So यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, चाइनीज़ आर्टिस्ट की जो ड्राइंग्स हैं, वो चाहता है कि आप ना सिर्फ उसको फिजिकली अप्रूव करें, जो ब्यूटीफुली दैट हैज़ बीन ड्रॉन, आप नॉट ओनली हैव टू अप्रिशिएट दैट, बट यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट द एब्स्ट्रैक्ट, द फीलिंग्स दैट द पेंटर हैज़ depicted, the abstract feelings, the abstractness of the पेंटिंग. मीन्स जो आर्टिस्ट की अपनी फीलिंग्स थी, जो उसने जिस समय उसने वो क्रिएट किया है आर्ट को, उस पेंटिंग को, आपको जो देखने वाला है उसे उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है, उसी चीज़ को सराहना है. Now children, we are continuously talking about this theory called Taoism. Taoism actually है क्या? According to Taoism, the universe is composed of two complementary poles, that is yin feminine and yang masculine. यानी डाओइज्म में कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है, इट कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स, बेसिक टू पोल्स, जैसे आपके नॉर्थ एंड साउथ हैं, उसी तरह दो पोल्स हैं चाइनीज़ डाओइज्म के अकॉर्डिंगली. एक है यिन, दैट इज़ फीमेल, एंड यांग, दैट इज़ मैस्कुलाइन, दैट इज़ मेल. तो द इंट्रैक्शन ऑफ दीज टू एनर्जीज मेक्स द यूनिवर्स. अब इन दोनों को जब इंट्रैक्शन होता है तो एक जो एनर्जी एमिट होती है यूनिवर्स में, उसे बोलते हैं मिडल वॉइड, जिसको अक्सर जो है प्रोडक्शन में, जो यूनिवर्स की प्रोडक्शन में हमेशा ही जो है, दिस वाज द थ्योरी अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ पेंटर्स एंड चाइनीज़ थ्योरीज. दीज टू बेसिक poles were required. Yin and yang
they were able to produce everything that has been created in the universe. And now what has the these theories can be compared to, this can be compared with the yogic practice of pranayam. Breathe in, retain, breathe out. The retain part is the middle void. जैसे हम प्राणायाम में भी करते हैं, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट एक्सरसाइज, बीच में जो हम जो गैप देते हैं 2 मिनट अपने आप को, वी रिलैक्स ourselves in between all these exercises, that is called the middle void where meditation occurs. Now इस चीज़ को, इतने से ही ब्रेक को हम क्या बोलते हैं, मेडिटेशन. ठीक है. सो द void is essential, nothing can happen without it. तो जो ये हमारा मेडिटेशन है, हमारा जो रिप्रोडक्शन है, ये सारा यूनिवर्स में इसी डाओइज्म थ्योरी पे बेस्ड है. इन डाओइज्म अ लैंडस्केप इज कॉल्ड सैन शुई. नाउ डाओइज्म के अकॉर्डिंगली आपका जो लैंडस्केप बनाया जाता है, जो पेंटिंग्स लैंडस्केप दिखाने के लिए बनाई जाती हैं, उसको कहा जाता है सैन शुई. दैट इज शैन इज़ माउंटेन, शुई इज़ वाटर. ठीक है. हाउएवर इट डजंट रिप्रेजेंट अ रियल लैंडस्केप, इट इज़ द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. ये सिर्फ डाओइस्ट जो फॉलोअर्स हैं, जो डाओइस्ट चाइनीज़ फॉलोअर्स हैं पेंटिंग के, उनकी थ्योरी है. जो वू डाओजी के थ्योरी को फॉलो करते हैं, उनकी थ्योरी है. सो the mountains and river in the Chinese paintings are representative of Shan Shui and the unpainted space is representative of middle void. अब जो जैसे प्राणायाम में I told you that retain exercises, your breathing in breathing out exercises, उसके बीच में जो retain, बीच में हम ब्रेक लेते थे अपने आप को थोड़ा सा, we break that from inhaling and exhaling. in between that जो middle section होता था उसको middle void कहा जाता था, जो meditation में help करता था. देन इन द सेम वे ये जो सैन शुई है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लैंड एंड माउंटेन्स. ठीक है. तो सो दीज टू फोर्सेस, उनके बीच में जो ये, सो हेयर द बिलीफ इज़ दैट द माउंटेन्स एंड जो वाटर है ये मिलके सैन शुई बनाते हैं. बट उसके ऊपर जो अनपेंटेड स्पेस है, जो स्पेस जो छूट जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द मिडल वॉइड, जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है यिन और यांग का, यानी 2 फोर्सेस मिलके यूनिवर्स की कितनी सारी क्रिएशंस को सपोर्ट करती हैं, इनको रिप्रोड्यूस करती हैं, इनको बनाती हैं. सो व्हाट थ्रू दिस चैप्टर व्हाट डज द ऑथर नैथली ट्रोबरॉय वांट्स टू से इज दैट man is a medium of communication between the 2 complementary poles of the universe and you can see this presence too in the Chinese पेंटिंग्स. सो इन्हीं 2 फोर्सेस के ऊपर जो यिन एंड यांग है और उसका जो मिडल वॉइड है, जिस सेक्शन में आपके ये रिप्रोडक्शन एंड ऑल दैट टेक प्लेस इन द मिडल वॉइड, दैट इज़ व्हाट द मैन इज सर्विंग एज. सो ही इज़ बीन सर्व्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री पोल, जो दोनों पोल्स के बीच का हिस्सा है, जो रिप्रोडक्शन को और यूनिवर्स को आगे बढ़ा रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ पेंटिंग्स वांट टू टेल. सो चिल्ड्रन, दिस वाज एन इंसाइट इनटू द चैप्टर दैट इज़ द लैंडस्केप ऑफ द सोल, जहाँ पे आपको तो डाओइज्म थ्योरी के ऊपर बताया गया है कि चाइनीज़ किस आर्ट फॉर्म को, किस थ्योरी को फॉलो करते थे. सो दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर द लैंडस्केप ऑफ द सोल. थैंक यू.